would you genuinely believe me if I come and tell you कि आज से 7 years ago or maybe 6 years ago I would not speak a word, or like it's not like I wouldn't speak, but I used to always put myself behind somebody, be it my parents. बचपन से लेके till the time maybe 10th or 11th I did not speak much, and उसके बाद hiding behind my friends or my boyfriend. That was my life. Can you believe that I was that person? Hi guys, welcome back to my channel. So I just felt like talking here and I wanted to come across and share with you all how putting myself out there, how being an extrovert changed my entire life. And I don't think I could ever be grateful, like ever thank God enough for that change in my life. I genuinely cannot tell you. So if anybody who knows me knows कि before I went to college, I was a very different person, and after college, I changed into a completely different person. Before college, when I was in school, so I was in this relationship with a guy, and my entire world was my boyfriend. कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, बाकी सब भाड़ में जाओ, मेरे दोस्त भाड़ में जाए, एग्जाम्स भाड़ में जाए, पढ़ाइयाँ भाड़ में जाए. ऑनेस्टली उस टाइम पे मेरे को होता था कि मैं घर वाले भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ ये और मैं दो ऐसे हम साथी हैं. बट दैट इज़ नॉट लाइफ इज़. एंड मतलब मुझे पता है उस एज में लगता है कि नहीं, दिस इज़ एवरीथिंग, दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड इफ दिस डजंट वर्क आउट यू वोंट बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट. मतलब ऑनेस्टली उस टाइम पे तुम नॉट वर्किंग आउट का तो सोचते ही नहीं हो. बट sometimes it doesn't work out, like 90% of the time it doesn't work out. And let me tell you, that always works in your favor. That is a very big blessing that can happen to you if you do not wish to put yourself through that pain. And just in मतलब अगर दो तरीके होते हैं, either you learn something from it and come out as a better person, or you destroy yourself completely. So I'm talking about the first person, I'm not talking about the second person. Never been there, never want to be there, and I would suggest you don't go there. Anyway, मेरा ऐसे होता था स्कूल में, मैं किसी इतनी बात नहीं करती थी till the time he broke things off with me, and I thought मेरी लाइफ खत्म हो गई है. Honestly, it took a year and a half or maybe 2 years, or maybe more than that, for me to move on from him. Like move on. Yeah, move on. So it took 2 years easily. मतलब him and I used to go back and forth बारी कि नहीं चल जाएगा, नहीं चलता है. एक बार ख़त्म हो गया मतलब ख़त्म हो गया है, तो इतना मत घुसो इन चीज़ों में. Anyway, when things ended and I went off to college, I met a lot of new people, and that was my time to rebuild my personality and put myself out there जैसे मैं चाहती हूँ. कि वहाँ मुझे कोई नहीं जानता, तो मेरे पास पूरा मतलब एक क्लीन स्लेट है, मतलब एक पूरा कैनवस दे दिया है मुझे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ. मतलब इफ़ आई वांट टू गो एंड टेल विद समबडी इन कॉलेज, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, इतने बड़े कॉलेज में मैं किसी को नहीं जानती. इफ़ आई वांट टू गो एंड टेल देम आई एम, व्हाट डू आई वांट टेल देम, if I want to go and tell them that, you know, I am the most talkative person you'll ever see, they will believe me because they do not know me. If I go and tell them कि all my life I have done this, all my life I have done this, they will believe me. मेरे पास तो क्लीन स्लेट है, मैं कैसे भी दिखाऊँ अपने आप को. आई एम नॉट सेइंग गो लाई अबाउट योरसेल्फ, ऑलवेज बी ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ, बट आई ऑलवेज हैड द चांस. आई ऑलवेज वांटेड टू बी समबडी हु इज आउट देयर, यू नो, हु इज़ वेरी, मतलब जो बहुत जल्दी किसी की दोस्त बन जाती है, बहुत जल्दी लोग शेयर कर लेते हैं बातें से. आई ऑलवेज वांटेड टू बी दैट पर्सन. आई वांटेड टू बी दैट सेफ स्पेस. पता नहीं मुझे होता था बस. एंड मैं अपने आप को कैसे भी दिखा सकती थी, भाई मैं कुछ भी बात करूँ किसी से, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. वॉट इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैपन, बिकॉज व्हेन माई बॉयफ्रेंड एंड आई ब्रोक अप, उसके बाद मेरा ना कहीं मुझे लगता है वो फियर चला गया कि छोड़ के ही जाएगा ना ज़्यादा से ज़्यादा. मतलब आई मीन आई स्टिल फियर पीपल, लाइक लूजिंग पीपल जिनसे मैं बहुत क्लोज हूँ, बट वहाँ तो कोई मेरा इतना क्लोज नहीं था ना. आई कुड लिटरली जस्ट लेट देम गो कि मेरा क्या ही चला जाएगा. मैं इस बंदे से कितने दिन पहले मिली हूँ, 4 दिन पहले मिली हूँ ना, दिल को बिग डील. इसीलिए आई डोंट थिंक आई एम इवन फ्रेंड्स विद एनीबडी फ्रॉम कॉलेज. barely 2 or 3 people आई नो जिनसे मेरी बात हुई है बाद में भी या टिल डेट होती हो.
बट टिल डेट देखो बात सबसे होती है, ऐसा नहीं बात नहीं होती, बट एनी वे दैट वाज द थिंग. सो आई वेंट टू कॉलेज एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग, एंड देन माई मॉम यूज्ड टू बी वेरी पोसेसिव अबाउट मी. तो मुझे कहीं नहीं जाने देती थी. कॉलेज में मैं थोड़ी ना ऐसे रिबेलियस सी बन गई कि नहीं मुझे जाना, क्या कर लोगे, क्योंकि मेरा उस टाइम नेचर हो गया कि क्या ही कर लेंगे मैक्स टू मैक्स. बंदे को क्या होता है, डांट पड़ सकती है, मार पड़ सकती है, घर से तो नहीं निकालेंगे मेरे को, चाहे वो धमकी देंगे कि घर से निकाल देंगे, बट वो निकालेंगे कभी नहीं, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम है तुम्हारे बाहर जाने से, तो वो कभी वो चीज़ नहीं करेंगे. बट एनी वे मैं थोड़ा बाहर बाहर जाना शुरू हुई. एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे बहुत मैटर करता है कि तुम किन लोगों के साथ घूम रहे हो. तो जिन लोगों के साथ थी वो बहुत आउट देयर होते थे. ऑल ऑफ दोज पीपल वो शिफ्टेड टू दिल्ली बिकॉज ऑफ कॉलेज. दे वर नॉट फ्रॉम दिल्ली, मतलब दे आर माई फैमिली फ्रेंड्स, लाइक आई नो देम सिंस माई चाइल्डहुड. वो पानीपत से थे सारे. तो मैं इतनी इन्वॉल्व हो गई उन सबके साथ, अपना बाहर बाहर जा रही. एंड दैट मेड इट ईजियर फॉर मी इन माई अदर फ्रेंड ग्रुप्स एंड इन मी मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. कि हाँ यार वो लोग भी, मतलब तुम्हारा ना दिमाग, व्हेन यू आर एन इंट्रोवर्ट और अ पीपल प्लीजर ऑल योर लाइफ, यू हैव दिस थिंग कि हाँ वो भी तो ऐसे करते, तो मैं शायद ऐसे करूँगी तो शायद ऐसे हो जाएगा. एंड आई स्टार्टेड पुटिंग माई सेल्फ आउट देयर. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स, डूइंग रैंडम स्टफ. आई जस्ट स्टॉप्ड सेइंग नो टू थिंग्स. मैं रैंडमली ऐसे प्लान बना, किसी के भी घर जाके बैठ गए, ठीक है चलो. मतलब आई नॉट थिंक गर्ल्स प्लीज डोंट गेट इट कि किसी भी लड़के के घर जाके कुछ भी हो गया, ये वो नो. दीज वर ऑल वेरी ट्रस्टेड पीपल and I used to go out with them. Please do not take this in a negative way in any form. I am not trying to promote anything that you should not do. तो जो भी है, एंड माई पेरेंट्स यूज टू नो, मतलब आई स्टार्टेड टेलिंग देम स्टफ ताकि वो थोड़ा इन्वॉल्व है मेरी लाइफ में, एंड यू नो द स्टार्ट अलाउइंग मी फॉर स्टफ, एंड दैट इज व्हाट चेंज द गेम फॉर मी. सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट, ये वो. उसके बाद आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ दैट कॉलेज एंड तब तक मैं ना पूरी चेंज हो चुकी थी. मतलब वो 6 महीने वर द लाइफ चेंजिंग. ऐसे पूरा 180 टर्न लिया मैंने उस टाइम पे कि अभी तक तो मैं नई दुनिया देख कर आई हूँ भाई कुछ. एंड मैंने बहुत फन करा. मतलब दो 6-7 months ऑफ दैट कॉलेज were literally the best time of my life. I swear I could go, if I could go back, I would go back and do it all over again. किसी से भी बात कर लेती थी भाई मैं यहाँ, मतलब there used to be a friend of mine, वो randomly चलते चलते किसी को कुछ बोल देती थी और मैं दिखती थी कि भाई मैं, I mean 7 years ago I could never do that. and आज मैं भी ऐसी हूँ, किसी से भी कुछ भी बात कर लूँगी. मतलब तुम मेरे साथ बैठ जाओ and you will have a long session of talking, कुछ भी बात करते रहेंगे. So yeah, that's what happened. and उसके बाद I just kept changing and changing, मतलब evolving in that sense, क्योंकि एक बार वो खुल तो चुके थे वो दरवाजे मेरी लाइफ के, तो उसके तो कुछ भी हो रहा है. उसके बाद मैं कॉलेज वॉलेज तो नहीं जाती थी, मतलब आई वॉज इन अ डिफरेंट कॉलेज, बट मैं जाती वाती नहीं थी. आई यूज्ड टू चिल विद माई फ्रेंड्स ऑल द टाइम, ये वो. Then when I started partying, there was this one random day my friend called me up and he was telling me कि I'm throwing a little birthday का scene यहाँ पे, just come. So I said fine, I'll come, not an issue. And I mean that was one of the best days. जो भी है मैं उसके बाद गई, and I started visiting that place more often. वहाँ पे Wednesday nights होती थी, so I used to go there and I made so many friends and so many contacts. To be very honest, I made a lot of contacts there, and that is what has led me to the life I'm living right now. It has given me the confidence to go out and talk to people. It has given me the confidence to learn new things. It has given me the confidence to explore a lot about myself. It has given me the confidence to know parts of myself that I did not ever know. It has given me the confidence to try new things and have the mindset of क्या ही हो जाएगा max to max. Like I mean, अब मैं मेरी approach life को लेके होगी है, if I know कि you know maybe this thing won't work out for me in the long run, but I want to try it, because if it works out, beautiful. If it doesn't, I will obviously come out as learning something. So what is the worst that could happen? And वही हुआ भाई मेरे साथ. मतलब मैं ऑनेस्टली कोई ज्ञान व्यान देने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं हूँ भी नहीं जिससे तुम ज्ञान ले सको भाई, सच बताऊँ तो. बट मुझे लगता है कि सबको एक बारी लाइफ में ना वो चीज़ करना चाहिए. मतलब इफ़ यू वांट टू बी दैट पर्सन, आई एम नॉट सेइंग कि इंट्रोवर्ट होने में कुछ गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है भाई, तुम्हारी अपनी चॉइस है, सबका अपना नेचर होता है, उसमें कुछ गलत नहीं है. बट इफ़ यू वांट टू बी समबडी who wants to get out there and you know is just not confident enough, just a lot of people are not confident with posting online, but they want to become a content creator, or they want to become an influencer or a YouTuber or anything in the social media field. तो ऑनेस्टली मैं भी ऐसी होती थी, मेरे में 1% का कॉन्फिडेंस नहीं था. एंड टिल डेट, आई वोंट लाई, टिल डेट देर आर टाइम्स व्हेन आई शाई ऑफ
अगर कोई ऐसा आके बोल दे कि ओ तू तो यूट्यूब पे है, मतलब इट जस्ट पिंचेस अ पार्ट ऑफ मी कि मैं सोच जाती हूँ आई जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट कॉन्वर्सेशन, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हाँ मैं रहना चाहती हूँ यूट्यूब पे, मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पे रहना, बट एनीवे if you think if you want to be that person, I think you should just get out and push yourself to do things. फोर्सफुली करो, स्टार्टिंग में बहुत टफ होएगा, 2 महीने 4 महीने बहुत लगेगा। मतलब कई बार मुझे भी लगता है कि यार मैं पहले कितनी अलग होती थी, अगर मैं वैसी होती मेरी लाइफ कैसी होती, ये कैसा होता, वो कैसा होता, क्योंकि भाई तुम्हें नहीं पता होता तुम कैसे बंदों से मिल रहे हो, क्या मिल रहा है। बट भाई क्या ही फर्क पड़ जाएगा यार, जस्ट गो गेट आउट देयर, डू स्टफ, जस्ट डू रैंडम थिंग्स। आज की डेट में मैं किसी के साथ भी कहीं भी जा सकती हूँ, घुमाने ले जाओ मुझे, ट्रिप पे ले जाओ मुझे, बातें करा लो। मैं अगर ट्रिप पे गई हूँ, मैं वहाँ पे नए दोस्त बना, मैं अभी गोवा गई थी, आई मेड सो मैनी न्यू फ्रेंड्स। मतलब वो ऑल्दो मैं किसी फ्रेंड के थ्रू मिली थी, बट स्टिल अगर मैं पहले वाली होती मेरे में ना होता वो कॉन्फिडेंस। आज मेरे में है, मेरे को किससे भी मिलवा दो, किससे भी बैठ के बातें करा दो, और बता भाई क्या हाल है, और क्या चल रहा है, मतलब आई कैन जेन्युइनली सिट एंड टॉक। बट ये मैंने बहुत स्पीड में बोल दिया, बहुत कुछ मुझे अभी रियलाइज हुआ। आई थिंक व्हेन यू मेक बैड डिसीजंस इज व्हेन यू रियलाइज the good part about life, and those decisions actually work in your favor. I mean, I'm not saying कि यार जाके बहुत ही गंदे decisions लो और go back to your ex or do this or do that, but उस moment में जो सही लग रहा है ना वो कर लो, मत सोचो इतना क्या हो जाएगा, वर्स्ट हुआ। ये नहीं कि भाई छत वत से कूद जाऊँ, ऐसा कुछ मत कर लेना भाई गलती से भी। और मैंने कुछ सजेस्ट नहीं करा भाई, अगर किसी ने कुछ ऐसा करा, मैंने कुछ नहीं बोला किसी को कुछ करने को, मैं तो बल्कि अच्छाई के लिए बोल रही हूँ सबकी। बट मैं ऐसा बोल रही हूँ कि भाई लिव इन द मोमेंट। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, मतलब यार मैं भी बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ। मतलब मेरा कोई दोस्त ये देखेगा ना, वो सोचेगा ये किस मुँह से बोल रही है जब खुद इतना सोचती है। बट आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ this Mannat that this girl was 7 years ago, and I thank myself right now on behalf of that girl कि thank you so much for putting yourself out there, and that is more than enough for me. So from that point of view मैं बोल रही हूँ please try to move forward in your life and put yourself out there and just go try things मतलब do it. What's the worst that, मतलब मेरे को लगता है आप सबके दिमाग में ना ये क्वेश्चन होना चाहिए, what is the worst that could happen, and you always know your limit. तो अगर वो चीज़ तुम्हारी लिमिट से बाहर जा रही है, this is the like mean if you could die or you could harm somebody or it could really be bad, मतलब कुछ मैं बहुत एक्सट्रीम लेवल से बात कर रही हूँ, then don't do it. बट अगर इस लिमिट में कि शायद मेरा दिल टूट जाएगा, या शायद मैं इसको लूज कर दूंगी, या शायद मुझे लग जाएगी थोड़ी सी मतलब स्क्रैच वैच, इतनी, इससे ऊपर नहीं, गो डू इट, क्या हो जाएगा। अगर कोई चला भी गया ब्रेकअप हो गया, फिर लिखा होगा पैचअप होगा, नहीं लिखा होगा कोई नया मिल जाएगा, वही कमी थोड़ी है किसी की लाइफ में। अगर लग गई ठीक हो जाएगी, चोटी तो है, मेरे पैर में लिटरली फ्रैक्चर है, सॉरी लिगामेंट टीयर है, फ्रैक्चर नहीं है। क्या हो गया, वर्स्ट बैठी हुई हूँ ना, अब ठीक हो रहा है, इलाज हो रहा है, क्या हुआ। अगर उस दिन अगर पता होता तो शायद मैं ना जाती, या मैं तो वैसे चली भी जाती, बट पता होता तो मतलब आई डोंट थिंक, I mean I just think you lose the fun out of things if you try to plan out everything, and I think that is my ending statement. I don't know if this video is a clear message of me trying to explain things, but please मेरी जिस बात समझो जो मैं समझाना चाह रही हूँ, and I think समझ ही होगे. So yeah, just put yourself out there, and I'll see you guys in the next video. Let me know if you like these sit down videos and just me talking about stuff or something. But क्योंकि पहले भी मैंने एक बार डाली थी, तब इतनी किसी को पसंद नहीं आई थी, बट ये तो मैं बात करना चाहती थी, so I thought I'll record, and yeah, we'll do that. See you guys in the next one. Bye.